So students, in this video we will talk about Gibbs function or Gibbs free energy. As we have discussed various state functions and the recent state function was entropy. So in order to understand the feasibility of the reaction, there was another function known as Gibbs free energy was introduced. So we will take a look and let's decide by ourselves, is it appropriate to find out the feasibility or it is still incomplete. So let us check this out. So what is Gibbs free energy? It is denoted by symbol G. It is a state function, as for sure, like entropy, enthalpy, etc. It is also a state function where it is dependent only upon initial and final state. Hence, change in Gibbs free energy at a constant pressure and temperature establishes an alternate criterion for spontaneity or feasibility of a process or a reaction. मतलब साफ है, we are not discussing the definition of Gibbs free energy. The thing which we are discussing is that Gibbs free energy gives very absolute data about the spontaneity or feasibility of the reaction. So how does this gives a better picture of feasibility? In this section we will find this out. So it is a thermodynamic property of a system. ये एक thermodynamic property होती है किसी भी system की. Mathematically it is defined as G equals to यानी Gibbs free energy equals to H minus T for temperature, S for entropy. Later on we will discuss how this definition came, but फिलहाल हम इसकी कुछ derivations देखेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि how does Gibbs free energy is a very appropriate thing to find out the feasibility of a reaction. So G equals to H minus Ts. This is the mathematical expression. Now dg equals to, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट G, H and Ts. तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट dg इक्वल्स टू dh, है ना. अब Ts को अगर डिफरेंशिएट करूंगा, दीज आर टू फंक्शंस, हेंस फर्स्ट कीपिंग t कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग s, हेंस tds माइनस नेक्स्ट कीपिंग s कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग t. ठीक है, तो dg इक्वल्स टू dh माइनस tds माइनस s dt. Now as we are talking at constant pressure and constant temperature, then what will happen at constant temperature? dt means change in temperature. You know very well, if temperature remains constant, then the difference between initial and final temperature will also come to 0. So I have simply made it 0. At constant pressure and temperature लिख भी दिया है dt equals to 0 and the enthalpy part becomes heat at constant pressure. Now considering no non-PV work, मान के चल रहे हैं कि work was completely mechanical work, है ना. अभी हम non-PV work की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल हम किसकी बात करेंगे? केवल और केवल मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे जिसमें PV वर्क होता है. देखो PV वर्क होता है मैकेनिकल वर्क. फॉर एग्जांपल गैस एक्सपेंड हुई और पिस्टन ऊपर हो गया, दिस इज कॉल्ड PV वर्क. एंड व्हाट इज नॉन PV वर्क? नॉन PV वर्क इज द वर्क व्हिच वी कैन नॉट सिंपली, मतलब हम देख नहीं सकते. फॉर एग्जांपल EMF ऑफ अ बैटरी, मान लो कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई 10 वोल्ट की बैटरी है. सो द केमिकल लुक सेम, है ना, चाहे वो डिस्चार्ज है या फुली चार्ज है, केमिकल सेम दिखेगा, बट जिसकी जो फुली चार्ज है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, है ना. तो आई होप आप समझ रहे होंगे. दैट इज दिस एनर्जी व्हिच अ फुली चार्ज बैटरी कंटेन्स इज नोन एज नॉन PV वर्क एनर्जी. सो अगेन गोइंग थ्रू this equation, so let us talk about dh. तो what we can write instead of dh system, है ना. right now we are talking about system, तो dh system minus tds system, है ना. right now our concern is to find out for a particular system. So dh system minus tds system
considering T and P of a system to be constant, temperature and pressure remains constant. So I already told you enthalpy of the system at constant pressure becomes heat at constant pressure, QP है ना, सिस्टम माइनस TDS सिस्टम. अब देखो QP सिस्टम को मैंने यहाँ पे इसे ऐसे तोड़ दिया है. व्हाट इज DS सराउंडिंग? DS सराउंडिंग क्या है? मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सराउंडिंग इज हीट टेकन बाय द सिस्टम. देखो जो सराउंडिंग में जो चेंज होगा एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला है Q/T है ना. एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है Q/T. अब सराउंडिंग में क्या हुआ, सिस्टम ने जो हीट दी सराउंडिंग को तो वही मिलेगी, या सराउंडिंग ने सिस्टम को दी हीट वही सराउंडिंग की हीट है. तो अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग के पास हीट कितनी थी, मतलब सराउंडिंग का जो एंट्रोपी था इज इक्वल्स टू हीट चेंज ऑफ द सिस्टम अपॉन T. अब देखो सिस्टम ने हीट चाहे जो भी करी हो, ली हो या दी हो, दैट विल बी QP. एंड माइनस सिंबल मींस कि अगर सिस्टम ने हीट दी है तो माइनस मतलब उतनी सराउंडिंग ने ली है. अगर यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, तो सिस्टम को हीट मिलती. दिस इज द फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है. तो DS सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस Q सिस्टम अपॉन T. यहाँ पे P मैंने इसलिए लगा दिया है कि वी आर टॉकिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. अब यहाँ पे QP सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूँ, T इंटू DS सराउंडिंग. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QP इक्वल्स टू माइनस TDS सराउंडिंग. मैंने फर्दर डिराइव कर दिया और इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पर. तो ध्यान से समझो QP सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस TDS सराउंडिंग. तो देखो मैं इसकी जगह सिंपली ये पुट करूंगा. तो देखो DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ सिस्टम इज इक्वल्स टू QP सिस्टम की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस TDS सराउंडिंग. और यहाँ पे ऑलरेडी था माइनस TDS सिस्टम. ठीक है. तो DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ सिस्टम इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं. माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, TDS सराउंडिंग प्लस TDS सिस्टम. तो आई होप आप इमेजिन कर सकते हैं एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग है ना विल बिकम टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. तो यहां पे मैंने लिख दिया है DG यानी डेल्टा G TP सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस T डेल्टा S. देखो इसमें से T कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया माइनस T. देन D सिस्टम प्लस D सराउंडिंग इज इक्वल्स टू DS टोटल. सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन. यहाँ पे मैंने स्टार भी लिखा हुआ है. तो अब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज डेल्टा G. डेल्टा G which tells us about the feasibility of the reaction told us that if the multiple of temperature and change of entropy, total change of entropy है ना, has got negative value, it means जैसे कि अब देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि एंट्रोपी ऑफ द जैसे आपको बताया था ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर अ फिजिबल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग शुड बी मिनिमम 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर अ फिजिबल सिस्टम. तो अब ध्यान से समझो अगर इन दोनों का सम जो है, ठीक है, यानी डेल्टा S दोनों का सम है, अगर इन दोनों का सम डेल्टा S इनटू टोटल टेम्परेचर T, अगर इसका जो मल्टीपल है व्हाटएवर बी द वैल्यू इज, इफ इट हैज गॉट नेगेटिव वैल्यू देन इट मींस द सिस्टम इज फिजिबल और सिस्टम इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी के थ्रू हम फर्दर चीजों को समझेंगे. तो केस 1, इफ डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है. और ये आपको मालूम भी है, ये हमने एंट्रोपी वाले सिस्टम में निकाली भी थी. फॉर अ फिजिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए और मिनिमम तो 0 होनी चाहिए. तो डेल्टा S टोटल इफ इट इज पॉजिटिव देन डेल्टा G TP की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव. फाइनली द ओवरऑल वैल्यू विल बी नेगेटिव, मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और irreversible.
रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से हो जाता है, तो वो कभी रिवर्स नहीं आता, यानी बैक नहीं आता। दैट इज व्हाई वी कॉल एनी प्रोसेस व्हिच इज स्पॉन्टेनियस, we at the same time call it irreversible process. So first criteria, I think you understood that if total entropy is positive, then the reaction is spontaneous because delta G की value overall becomes negative. Second, if delta S total is zero, मान लेते हैं अगर ये जीरो है, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, if delta S system plus delta S surrounding is equals to zero means the reaction is at equilibrium, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देखो यहाँ पे मैं जीरो रखूंगा तो ओवरऑल जीरो आ जाएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मींस प्रोसेस इज रिवर्सिबल और एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा ऊपर वाला है, यानी कि स्पॉन्टेनियस, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस मींस इट इज एट इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट इफ एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा, तो यहाँ पे नेगेटिव प्लस ये नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इट मींस डेल्टा जी टीपी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, एंड दिस पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन ऑकरिंग प्रोसेस। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो हेंस डेल्टा जी at constant temperature and pressure for a system is equals to delta S system minus T delta S system। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को फर्दर लिख दिया, इसको आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नाउ 2NO, I have taken one example how to find the entropy Gibbs free energy change for a system. Let us assume this is a reaction 2NO gas plus O2 gives 2NO2 gas. Enthalpy change for this reaction is minus 50 kilojoule per mole. Comment whether the above reaction is feasible or not. हमें ये बताना है कि ऊपर की रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो उसके लिए इन्होंने एंट्रोपी की वैल्यू दी है। मोलर एंट्रोपी फॉर NO is equals to 120, मोलर एंट्रोपी फॉर O2 is equals to 80, molar entropy for NO2 is 150, and the values are in joule per Kelvin per mole. Just simply we know how to find out entropy change for a reaction. Product entropy minus reactant entropy। तो देखो यहाँ पे 2NO2 minus 2NO minus 1 into O2, तो ये ओवरऑल कितना जाएगा, minus 20 joule per Kelvin per mole। Now our next target is to find out the reaction is feasible. So you know very well, in order to find out the feasibility of a reaction, first criteria was the delta S system plus delta S surrounding should be greater than 0, and the second criteria and the most important criteria is its Gibbs free energy should be negative. So again putting the value, delta H value यहाँ से आ गई -50 minus T delta S। T की वैल्यू आपको मालूम है, उसने दे रखी होगी, मान लेते हैं 300 केल्विन नहीं दी है, 300 केल्विन ले ली, इनटू डेल्टा एस कितना है -20। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, माइनस, मींस स्पॉन्टेनियस। ये कितना है, 300, 3000, 6000, 50,000। हाँ तो माइनस है ना, तो मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब चेक कर लेना ओवरऑल वैल्यू अगर यहां पर माइनस आती है, मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो चेक कर लेना। इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन फॉर श्योर दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी for a process or a reaction G equals to H minus ds. We already know this. Again differentiating it, dG equals to dH T into ds, फिर keeping S constant dt. Now as we know temperature and pressure is constant. H की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, H is equals to U plus PV, आपको मालूम है। तो ये क्या बन गया, du plus
अब यहाँ पे फिर से दो कांस्टेंट, दो वेरिएबल आ गए, तो पीडीवी एंड देन वीडीपी, एक को कांस्टेंट करके दूसरे को और दूसरे को कांस्टेंट करके पहले को, तो ये मैंने कर दिया। फिर अगेन माइनस टीडीएस एंड माइनस एसडीटी। अभी मैं आगे छेड़छाड़ और करूंगा। अब देखो u की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, u की जगह मैं लिख सकता हूं q प्लस डब्ल्यू, और आपको मालूम है दैट w इज टोटल वर्क, है ना, आइदर पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क, यानी मैकेनिकल वर्क प्लस नॉन मैकेनिकल वर्क दोनों आ जाता है उसमें वर्क डन में। तो देखो q रिवर्सिबल प्लस वर्क डन रिवर्सिबल टोटल वर्क प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस पीडीएस माइनस एसडीटी। अब देखो मैं फर्दर क्या करने आ रहा हूं, q रिवर्सिबल को, अब ये q रिवर्सिबल किसका है q रिवर्सिबल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, S इक्वल्स टू q रिवर्सिबल अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, t ds इक्वल्स टू q रिवर्सिबल। आई होप ये आपको मालूम होगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे q रिवर्सिबल की जगह क्या लिख रहा हूँ, tds प्लस अभी जो वर्क डन रिवर्सिबल है ये टोटल वर्क था, एंड टोटल वर्क कंप्राइज ऑफ पीवी रिवर्सिबल वर्क, यानी वर्क पीवी प्लस वर्क नॉन पीवी। तो दो तरह के वर्क हो सकते हैं, आइदर इट इज अ पीवी मैकेनिकल वर्क और इट इज अ नॉन मैकेनिकल पीवी वर्क, ठीक है। तो सॉरी नॉन पीवी वर्क। सो पॉइंट इज टीडीएस प्लस दिस वर्क रिवर्सिबल टोटल is expanded in two form, PV and non-PV work। फिर अगेन PDV, VDP माइनस TDS माइनस SDT मैंने लिख दिया है। अब देखो ये TDS से ये TDS कट गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करने जा रहा हूं, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली डीपी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, वो आगे काट दूंगा। तो देखो क्या क्या बचा, ये कट गया, क्या बचा वर्क पीवी। तो देखो पीवी वर्क जो होता है, पीवी वर्क को हम माइनस पीडीवी भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपने पढ़ा ही लिया होगा। जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है या पीवी वर्क डन होता है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस पीडीवी, और नॉन पीवी वर्क को मैं, उसकी हमारे पास अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं थी, वो दैट वाज ओनली सिंपल नॉन पीवी वर्क। तो माइनस पीडीवी प्लस नॉन पीवी वर्क प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा नॉन पीवी, सॉरी ये हमारा हो गया पीवी वर्क, तो माइनस पीडीवी से पीडीवी कट गया, ठीक है, ये खत्म। अब क्या बचा, ये जो डीपी वाला कॉन्सेप्ट है, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट हेंस इट विल बी जीरो। और आपको मैंने अभी पहले दिखाया भी था, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट गिब्स फ्री एनर्जी। देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो dt वाला टर्म भी क्या हो गया, जीरो। तो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी क्या बची, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू वर्क नॉन पीवी रिवर्सिबल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमें एक डेफिनेशन मिल गई है गिब्स फ्री एनर्जी की, कि व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल नॉन पीवी रिवर्सिबल वर्क, मतलब वो वर्क जो सिस्टम जो है, सिस्टम के पास हमेशा अवेलेबल हो, जो वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है, एंड दैट वर्क इज नॉन मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल नहीं, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मींस बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ हट सकता, ठीक है। सो यहां पे मैंने लिख दिया है, चेंज और डिक्रीज इन गिब्स फंक्शन इन अ रिएक्शन और प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द measure of maximum non-PV work which can be obtained from the system। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मतलब आपको फिर से बता दूं कि जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री मींस दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड माइनस मींस डिक्रीज्ड। द पॉइंट इज इफ सिस्टम हैज गॉट सम, मतलब सिस्टम के पास कई तरह की एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी है, आप वो उससे सारी एनर्जी ले सकते हो जो उसके पास अवेलेबल है, बट आप उससे क्या नहीं ले सकते, आप उससे नॉन पीवी वाली वर्क नहीं ले सकते, नॉन पीवी वाली वर्क की एनर्जी नहीं ले सकते, बिकॉज वो सिस्टम के पास इंटरनली रखा हुआ है, वो उसे दे नहीं सकता।
सो दैट इज ऑल। अब आप कहोगे सर ये पता नहीं क्या कह रहे हो रिवर्सिबल, तो ये जो है नॉन पीवी पीवी मुझे नहीं आया समझ में। तो चलो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा एग्जांपल जो डेली लाइफ में एक अच्छा सा एग्जांपल। Let us assume this is Parthiv, this is Jonak, and this is Sovit। ठीक है, मान लेते हैं A पॉइंट B पॉइंट, मान लेते हैं all three are neighbors, मान लेते हैं all three are Parthiv and Jonak and Sovit are neighbors। ठीक है, all three live in Guwahati and all three are neighbors and they used to go to school every day। ठीक है, मान लेते हैं this point is A, इसको मैं होम बोल देता हूं। ठीक है, and this is school। ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि पार्थिव को होम से स्कूल जाने में मान लेते हैं कि 50 रुपीज रेंट यानी ऑटो का रेंट देना पड़ता है, ऑटो थ्री व्हीलर बस जो भी है 50 रुपीज का रेंट देना पड़ता है। ठीक है, और जोनक ऑटो से नहीं जाता है, बस से नहीं जाता, वो किससे जाता है, वो ओला से जाता है। मान लेते हैं ये 150 रुपीज ये अपने रेंट पे खर्च करता है। ठीक है, कहां से, ए से बी जाने पे, यानी अपने घर से स्कूल जाने पे। अब ये इनका खर्चा है मिनिमम, मतलब इन्हें डेली स्कूल जाना है। और सोवित भी एक बच्चा है, मान लो वो 80 रुपीज खर्च करता है ए से बी जाने पे घर से स्कूल। नाउ द पॉइंट इज पार्थिव की पापा जो है पार्थिव को 500 रुपीज डेली देते हैं। ठीक है, जोनक के पापा जोनक को डेली 1000 रुपीज देते हैं। ठीक है, रख के लेना, बच जाए तो ले आना, अदरवाइज अगले दिन यूज कर लेना। सोवित के पापा उसे मान लेते हैं अगेन 500 रुपीज देते हैं। ठीक है, ये इन तीनों की पॉकेट मनी है जो इन्हें डेली मिलती है टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल एंड देन अगेन कम फ्रॉम स्कूल टू होम। तो अब पॉइंट ये है कि एक दिन जो है सोवित जो है अपना पर्स जो है वो भूल गया, घर पे रह गया और वो स्कूल आ गया। अब ये इसके दोस्त है जोनक भी और पार्थिव भी। तो व्हाट हैपेंड, सोवित आस्क्ड पार्थिव टू लेंड हिम सम मनी, है ना, बिकॉज ही वांट टू गो टू स्कूल एंड कम बैक home in the evening. Now the point is he went to Partha and he asked him, please give me how much, some rupees. So Parthiv said, I can give you 100 rupees, 200 rupees, 100, 200, 300 और 150 यानी 450। पार्थिव के पास देखो, पार्थिव के पास ओवरऑल 500 रुपीज है और वो ये क्या है मिनिमम 50 रुपीज, उसको 50 तो एक साइड से लगता है, इधर से 50 लगता है मान लो, और इधर से वापस आते समय अगेन 50 खर्च होता है। तो इसने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं आपको मैक्सिमम 400 रुपीज दे सकता हूं सोवित को। ठीक है, सोवित ने कहा कि मेरे को जो है 80 जाने में लगता है, 80 आने में, यानी 160 चाहिए। ठीक है, तो ये जो पार्थिव है, पार्थिव ने बोला कि आई कैन गिव यू ओनली 400 रुपीज बिकॉज
मिनिमम 100 रुपीज, 50 जाने का और 50 आने का, इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई? इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो पॉइंट ये है कि इसने कितना मांगा, शोभित ने मांगा 160 रुपीज, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि जो 160 है, एक सेकंड, तो पॉइंट ये है कि 500 रुपीज पार्थिव के पास है एंड शोभित रिक्वायर्स 160 रुपीज मिनिमम, ठीक है, फॉर वन डे कम्यूट। सो द पॉइंट इज हाउ मच मनी कैन पार्थिव गिव टू शोभित। तो reason is quite simple. He has got minimum 100 rupees expense for himself and the left amount he can give to Mr. Shobhit, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ बात ये है समझने की, this is the total energy, अब इससे मैं केमिस्ट्री से जोड़ूंगा, this is total energy and this is the minimum, खास बात क्या है, नॉन अवेलेबल मनी। ध्यान रखना कि पार्थिव मैक्सिमम कितना रुपया दे सकता है शोभित को, 400। तो यहां पे पॉइंट ये है कि इसके पास अगर मान लो 500 रुपीज है तो भी इसका मिनिमम 100 रुपीज ये नॉन अवेलेबल है, बिकॉज अगर ये 500 का 500 अगर दे देगा तो ये अपने आप घर कैसे जाएगा, इसको दिक्कत हो जाएगी, इसे मांगना पड़ जाएगा। तो पार्थिव इतना तो स्मार्ट है कि उसे मालूम है कि भले वो मेरा दोस्त है लेकिन मिनिमम 100 रुपए मुझे रखने हैं। अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं 400 दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसे 450 दे दूंगा, बिकॉज अगर 450 दे दूंगा तो मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि पार्थिव जो है मिनिमम 100 रुपीज अपने पास रख के 400। अब यहां पे इशू क्या आता है कि जोनक भी अपना पर्स लाना भूल गया, ठीक है, जोनक अपना पर्स लाना भूल गया। अब जोनक का खर्चा कितना है, जोनक का खर्चा है आने और जाने का, मतलब जाने का 150 और आने का अगेन 150। तो जोनक को कितने रुपए चाहिए, वो भी पार्थिव के पास गया। जोनक ने कहा कि मुझे कितना चाहिए, ये है मिस्टर शोभित, शोभित को चाहिए मिनिमम 160 रुपीज और जोनक को कितने चाहिए मिनिमम, हाउ मच, 300 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या पार्थिव अपने दोनों दोस्तों की हेल्प कर पाएगा। तो आओ चेक करते हैं, ये हो गया 0 6 3 4। तो अब मुझे बताओ कि क्या पार्थिव दोनों की हेल्प कर पाएगा, बिकॉज मिनिमम अमाउंट या मिनिमम रुपीज which is required by Shobhit is 160 and minimum rupees which is required by Jonak is 300. Overall expense was 460, but he has available rupees only 400 because it has because Parthiv has minimum expense of 100 rupees in order to go from home to school and then come back to home. So the point is he can help only one of his friend, either Shobhit or either Jonak. तो अब क्यों, क्योंकि इन दोनों का एक्सपेंस 460 है और उसका मिनिमम खर्चा 100 रुपीज है एंड ही हैज गॉट बैलेंस ऑफ ओनली 400 रुपीज। तो ये काम नहीं करेगा पार्थिव। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस 100, दिस इज दी, लिख दिया मैंने, नॉन अवेलेबल मनी, और इसी को ही क्या बोलते हैं, गिव्स, इसी को क्या बोलते हैं, हाँ, चलो पहले इतना समझ लो इसको। sorry, this is the minimum non available energy, and what is this 400 rupees, this is the gives free energy। और केवल सिस्टम यानी कि पार्थिव मैक्सिमम कितना रुपए दे सकता है, 400, एंड दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, और द नॉन पीवी वर्क अवेलेबल
फ्रॉम अ सिस्टम। अब इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो एग्जांपल मेरा थोड़ा लेंथी हो गया है। ठीक है, बस इतना समझो। दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि आप सिस्टम से ले सकते हो, यानी पार्थिव से ले सकते हो। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, जो कि सिस्टम कभी भी नहीं देगा, एंड दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। बस इतना ही आप समझो फिलहाल इसमें, बाकी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।